गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. फर्स्ट आपण बघूयात इन व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, जो डिसिप्लिन है उसका हमने स्टार्ट किया था. जो भी पहली डिसिप्लिन थी वो कौन सी थी, तो बिल्डिंग प्लानिंग एंड द कंस्ट्रक्शन. व्हाट वी हैव सीन अबाउट दिस बिल्डिंग प्लानिंग एंड द कंस्ट्रक्शन, एनीवन कैन प्लीज. हमने क्या देखा था बिल्डिंग प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, उसमें कौन सा स्टडी आता है. Architecture and town planning. आर्किटेक्चर एंड Town planning. टाउन प्लानिंग. Building planning and construction. In this, we have seen that how to build a plan based on the satisfying the fundamental principles of the planning and the bylaws of municipal bodies, which will be for the different types of the building, like a residential or public building, school, colleges, again government offices, hospitals, banks, malls. They are designed according to their need of specific occupant and the purposes. ओके इसमें से हमने क्या सीखा था, तो जो भी प्लान हम कर रहे हैं वो प्लान किसके हिसाब से कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ ऑक्यूपेंट, स्पेसिफिक ऑक्यूपेंट, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट स्पेस. ओके एंड प्लान जो बनाना है वो प्लान क्या सेटिस्फाइड करना चाहिए, जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग है और जो भी बायलॉज है वो जो गवर्नमेंट बॉडीज ने बनाए हैं वो सब सेटिस्फाइड करना चाहिए. दैट विल बी कम अंडर दिस बिल्डिंग प्लानिंग. एंड आफ्टर दिस बिल्डिंग, आफ्टर दिस सैंक्शनिंग दिस ऑल द whatever the principles satisfied by the principles of planning and the municipal bodies, after that we'll go for the planning and the construction of any type of the building. तर बघा या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं, बेसिकली प्लॅन बनवायचं. अँड फॉर द बेसिक्स ऑफ प्लॅनिंग we use the software like a AutoCAD. AutoCAD मध्ये आपण काय करतो, by using this AutoCAD software we will make a plan into that. Rough plan will make, after that we will go for the finishing or the finalizing the our plan into the software only. That will be named as a AutoCAD software. That will be come under building planning, and after the planning of the building we'll go for the constructions of the any structure. All of you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज येत नाही आज. All of you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is the what are the bylaws that we have seen, that bylaws which are about the related to the area and the height of the building, and that all bylaws and related to the setback distance. Again there are the rear and front distance, that all related to the area and the related to distance and height of the building, that all the bylaws should be satisfied by the building, and then government bodies will be sanction our plan. Next one we have seen that structural engineering. What is the structural engineering? That structural engineering is deals with the analysis and design of any type of the structure. Okay, in the structural designing, what we will calculate the stresses which are come under the structure. त्यामध्ये able बघा, if we select this building, multi-story building, तर in multi-story building में क्या कहता है, जो beams है, columns है, उसका सब walls आते हैं, रूप आता है, total load कहाँ पर ज्यादा आता है, कहाँ से कहाँ लोड आता है, वो सब लोड कैलकुलेशंस, उसके हिसाब से स्ट्रेसेस, कौन से कंपोनेंट पर कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, कितना स्ट्रेस आता है, तो मूवमेंट हो रहा है तो कितनी मूवमेंट होती है, ये सब जो कैलकुलेशन रहता है, तो ये कैलकुलेशन हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पे ही रहता है. उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जो भी बिल्डिंग है उसका डिजाइन करना है या तो एनालिसिस करना है. तो डिजाइन करना है मतलब क्या, जो बिल्डिंग कंपोनेंट है तो उसका रूफ का डिजाइन, स्लैब का डिजाइन, उसके कॉलम है तो उसका डिजाइन करना चाहिए, बीम है तो बीम का डिजाइन करना चाहिए. ओके, वॉल है तो वॉल का रेनफोर्समेंट कितने ब्रिक्स वगैरह है, वो सब जो स्टडी रहता है. तो जो बिल्डिंग एलिमेंट जो है, सभी एलिमेंट का जो भी डिजाइन रहता है, पार्ट फाउंडेशन है तो फाउंडेशन का डिजाइन क्या है, कौन से टाइप का फाउंडेशन यूज करना है,
वो सभी का डिजाइन और कैलकुलेशन हम जो करते हैं वो इसमें करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। और उसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर है, वो जो सॉफ्टवेयर का नेम है वो नेम है स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर। और वो यूज करके हम क्या करते हैं, एनी टाइप जो भी टाइप का स्ट्रक्चर है उसका हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। वहाँ तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी आ सकती है, टावर्स आ सकते हैं, रिटेनिंग वॉल है, वाटर टैंक है, ब्रिजेस है, डैम साइट है। तो सभी का वो हम क्या करते हैं, यहाँ डिजाइन भी करते हैं और द एनालिसिस भी करते हैं। ओके कहाँ पर स्ट्रेसेस ज़्यादा है, कहाँ पर स्ट्रेसेस कम है, नहीं तो हम कौन सा कहाँ फेलियर हो सकता है, कहाँ भी फेलियर नहीं हो सकता है, कितना लोड दिया तो फेलियर होगा। ये जो पार्ट आता है ये सब स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ही आता है। तो उसके लिए ये जो ब्रांच है, ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के रिलेटेड ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच विच विल बी यूजफुल फॉर द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एनी टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, okay, like a multi-story building, towers, retaining walls, water tanks and the bridges. Required skills and knowledge of the structural engineering by using the softwares like a STAAD Pro। या STAAD Pro मध्ये STAAD Pro का यूज करके हम कौन से भी टाइप का क्या कर सकते हैं, एनालिसिस एंड डिजाइन भी कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट जो आता है वो स्टील स्ट्रक्चर के बारे में, कौन सा भी ट्रस है तो ट्रस का भी, वाटर शेड है, शेड का रहता है ना हमारे घर में इधर, वो शेड का भी जो कौन से मेंबर है, वो टेंशन मेंबर कौन सा है, कंप्रेशन मेंबर कौन सा है, कौन से मेंबर पर ज़्यादा लोड आ रहा है, इसका भी हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं वो भी यूज करके। तो स्टैड प्रो यूज करके हम इधर क्या करते हैं, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स करके है। सो दैट स्टडी वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर। विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। That will next one is the next discipline is the geotechnical engineering. What is the geotechnical engineering? We have discussed in the last lecture. What is the discipline geotechnical engineering? It deals with geotechnical engineering is study of Soil. study of soil, only 2 minutes are remaining. We'll discuss once again. I will take a revision of this and we'll end the meeting. After in the next lecture, we'll go for the water resource engineering. ओके जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हमने क्या सीखा, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल। ओके इसमें जो मोस्ट पार्ट जो आता है वो क्या आता है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन। जो हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उधर डिजाइन करना है, जो भी फाउंडेशन है उसका हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन है वो soil investigation includes the collection and testing of soil samples। हमें क्या करना है, जो भी साइट है उस पर हमें कौन से डेप्थ पर कौन से टाइप का सॉइल है ये जो हमें करना है, उसके लिए टेस्टिंग हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, वो 1 मीटर या 2 मीटर 3 मीटर ऐसा क्या करना चाहिए, स्पेसिंग रख के हमें क्या करना है, सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। और सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, वो सैंपल्स हम टेस्ट भी करते हैं। कहाँ टेस्ट करते हैं, हमें जो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लेबोरेटरी में हो वो टेस्ट करते हैं। उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि उसके प्रॉपर्टीज क्या है, हार्ड स्ट्राटा कहाँ है, वीक स्ट्राटा किधर है, और उसके हिसाब से हम जजमेंट बनाते हैं कि यहाँ हार्ड स्ट्राटा है, ये 1 मीटर या 2 मीटर डेप्थ पर हार्ड स्ट्राटा रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ फाउंडेशन का टाइप हम चूज कर सकते हैं। या तो हार्ड स्ट्राटा हमारे शॉर्टर डेप्थ पर रहता है तो हम क्या करते हैं, शैलो फाउंडेशन यूज करते हैं। नहीं तो हार्ड स्ट्राटा हमें शॉर्टर डेप्थ पर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, वहाँ डीप फाउंडेशन टाइप हम यूज करते हैं। और उसके लिए
जो भी प्रोविजन है एज पर एज द सिविल इंजीनियरिंग पर्पज, वो प्रोविजन यूज करके हम क्या करते हैं, वहाँ जो भी सॉइल रहती है वो सॉइल के क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टीज इंक्रीज करते हैं फॉर द इंक्रीजिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स। ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या क्या इंक्लूड्स होता है, ए मेजरमेंट ऑफ द सॉइल पैरामीटर्स एंड द सेफ फॉर द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। इट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शंस एंड डिजाइन ऑफ सिंपल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन जो कैसेंट फाउंडेशन होता है, कॉफर डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन डैम्स जो टनल का कंस्ट्रक्शन रहता है, रोड का भी जो कंस्ट्रक्शन रहता है, अर्दन डैम्स या तो अर्थ रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन है, वहाँ सभी साइट पर हम क्या करते हैं, हमें जो भी सॉइल रोल रहती है उसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर है उसका पूरा जो सब स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो भी फाउंडेशन का पार्ट है, वो कहाँ है, अर्थ पर है। तो उसके लिए जो भी अर्थ है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी चाहिए, जितना लोड ऊपर से आता है उतनी कैपेसिटी उसकी सॉइल की होगी, तो ही हमारा स्ट्रक्चर क्या रखता है, इक्विलिब्रियम में रह सकता है। नो तो क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उधर जो भी स्ट्रक्चर है उसके बेयरिंग कैपेसिटी, उसके पैरामीटर्स हमें चेक करना चाहिए। और जो भी वो सेटलमेंट होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन हमें वो पता नहीं चलता कि वहाँ सेटलमेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है, for a geotechnical engineering, you can see here in our each and every building is divided into two parts, substructure and superstructure. Total load is coming on the ground level towards the foundation towards the soil, and so that soil, so that there is a need to go for the study of this substructure with respect to the foundation parameters. And foundation of soil and substructure should resist the forces which are coming from the structures. That is the basic aim of this. Is it okay to all? समजलं का सगळ्यांना? All of you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.